Now come to next topic called as cells of immune system. After completing two types of immunity, now we want to discuss cells of immune system. When you observe the cells of immune system, two types of cells are present in human body, which helps to fight against different types of virus. Name of one immune system, name of one type of cell involved in working of immune system are number first one is called as lymphocytes. Lymphocytes, which you know very well, which we have discussed in circulation. And name of second type is called as antigen presenting cell. Antigen presenting cells. Two type of special cells are available so that it work to fight with different types of microorganisms, different types of antigen. Now what do you mean by lymphocytes? Lymphocytes are the main cells of immune system. Lymphocytes are the main cells of immune system. Lymphocytes are the main cells of immune system. This is first point. Second point, like other blood cells which arise from stem cells, the hemocystoblast present in liver of fetus and in bone marrow in adults. बाकी के ब्लड सेल्स में जैसे फॉर्मेशन होता है स्टेम सेल्स के द्वारा, वैसे ही फॉर्मेशन जो है लिम्फोसाइट्स का भी होता है. एंड दे वर्क अकॉर्डिंगली, और उसके हिसाब से ये भी अपनी बॉडी में हेल्प करता है. जनरली दे रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड दे आर बोन, thymus. Two types of primary lymphoid organs are there. One is called bone and one is called thymus. Some of them undergoes differentiation in gut associated called as bursal lymphoid tissues. Called as bursal lymphoid tissues. Make it very IMP. कई बार MCQs में आता है bursal lymphoid tissues which are present in tonsils and you call it as Peyer's patches. Peyer's patches. Others are differentiated in thymus gland. अब बाकी के जो है काय में डिस्टिंग्विश हो जाते हैं thymus gland में, which helps to prepare one hormone called thymosin and are termed as T lymphocytes. और उस समय अपन उसको क्या बोलते हैं? T lymphocytes बोलते हैं. At that time we call it T lymphocytes. The mature lymphocytes pass into the body fluid in form of blood as well as lymph and circulate in the body. Many of them stay in lymph nodes. बहुत सारे जो है आपके lymph nodes में stay करते हैं और वहां से kill करने का काम करते हैं unwanted organisms को. The B lymphocytes and T lymphocytes form humoral or antibody mediated immune system. Humoral, जिसको बोला गया है antibody mediated immune system. Antibody mediated immune system. Antibody mediated immune system. Is it clear? Humoral or antibody mediated immune system. And second one is called as cell mediated immune system. Cell mediated immune system. Both will work so that
there is no chances of any infection. Cell mediated immune system, which is generally called as CMIS, cell mediated immune system, and antibody mediated immune system is generally labeled as AMIS, antibody mediated immune system, and cell mediated immune system. Both this immune system, humoral as well as cell mediated immune system, need antigen to come into action, but they respond in different ways. अलग अलग टाइप के एंटीजन बॉडी में आते हैं, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से उस एंटीजन को किल किया जाएगा, हार्म पहुंचाया जाएगा, सो दैट देयर इज नो चांस ऑफ एनी डेंजर, जिसके थ्रू बॉडी में कोई भी चांसेस नहीं रहेगी डेंजर का. नाउ हाउ इट वर्क? व्हेन यू ऑब्जर्व टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो ये कहाँ फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, दे आर फॉर्म इन बोन मैरो. They are produced in bone marrow. Both these types of lymphocytes develop from, we call it as hemopoietic stem cells. ये काय के द्वारा फॉर्म होते हैं? हेमोपोइटिक सेल्स से बनते हैं. हेमोपोइटिक सेल्स, इसी के थ्रू बॉडी में ब्लड का प्रिपरेशन होता है, so that our body becomes a factory of blood, because they are formed by bone marrow that originate in red bone, and the process of this production of blood is called as hemopoiesis. और उस समय ब्लड का जो प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, उसको क्या बोला जाता है? हेमोपोइसिस. While differentiating from stem cells, those which migrate to the thymus gland and develops are called as T cells, and you call that T cells as thymus cells. So these are details regarding lymphocyte cells. Now when you observe the mechanism of T lymphocytes to antigen, once, now come to second heading called as mechanism of response. Mechanism of response of T lymphocytes to antigen. T lymphocytes to antigen, किस प्रकार T lymphocytes एंटीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, और अननेसेसरी जो अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गए थे, हाउ दे आर किल्ड, दैट यू वांट टू स्टडी इन दिस टॉपिक कॉल्ड मैकेनिज्म. When you observe the mechanism, on coming in contact with antigen, a T lymphocyte form a clone of T cells. T cells का क्लोन बन जाएगा. Large number of T cells are formed once a antigen come in contact, which are similar. सबके सब T cells जो है similar है, but they perform different function. But they perform different function. लेकिन सभी का फंक्शन जो है अलग अलग रहेगा. जैसे आप देखते हो, जितने भी बदमाश है, विच यू कॉल इट एज चोर, अलग अलग टाइप के रहते हैं. कुछ चोर जो है घरों में चोरी करते हैं, कुछ चोर जो है डाका डालते हैं, कुछ चोर जो है वो किडनैप करते हैं, फिर धमकी देकर पैसा ऐंठते हैं. इज इट क्लियर? उसी प्रकार यहाँ पर भी बॉडी में अलग अलग टाइप के एंटीजन आएंगे, और उस एंटीजन को मारने का तरीका भी बॉडी सेल्स का अलग अलग टाइप से रहेगा. एंड दिस क्लोन टी सेल्स दे गेट डिस्टिंग्विश इनटू 4 टाइप, और ये क्लोन टी सेल्स जो है वो डिस्टिंग्विश हो गए 4 अलग अलग टाइप में. सम आर कॉल्ड एज हेल्पर टी सेल्स, सम आर डिस्क्राइब्ड एज हेल्पर टी सेल्स, some are described as killer T cells, some are described as suppressor T cells, and some are described as memory T cells. Now
हाउ मेनी टाइप्स आर देयर? टोटल 4 टाइप्स आर देयर। 4 अलग अलग टाइप के टी सेल्स जो है बॉडी में डेवलप हो गए हैं। अब अलग अलग टाइप के जो टी सेल्स डेवलप हुए हैं, एज पर नेम दे वर्क अकॉर्डिंगली, और नाम के हिसाब से वो बराबर क्या करेंगे, बॉडी में वर्क करेंगे। नाउ कम टू फर्स्ट वन, हेल्पर टी सेल्स। दिस सेंसिटाइज्ड हेल्पर टी सेल प्रोड्यूस लिम्फोकाइन्स। ये क्या प्रिपेयर करेगा बॉडी में? लिम्फोकाइन्स प्रिपेयर करेगा फॉर परफॉर्मिंग सेवरल टाइप्स ऑफ फंक्शन लाइक प्रोलिफरेशन ऑफ अदर टी सेल्स, स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेज एक्सेट्रा, जिसकी बदौलत बॉडी में और एक्टिविटी जो है फास्ट हो जाएगी। देन व्हाट इज द रोल ऑफ किलर टी सेल्स? इट इज कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। दे डायरेक्टली अटैक एंड डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रोब्स। डायरेक्ट अटैक करता है, फायरिंग चालू कर देता है। किलर टी सेल्स, नाम ही उसका किल करना। हेल्पर टी सेल्स, काम ही था उसका हेल्प करना इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स और कैंसर सेल्स। किलर टी सेल्स बाइंड टू इन्फेक्टेड सेल एंड सिक्रीट परफोरिन। और बॉडी में क्या सिक्रीट कर रहा है? परफोरिन सिक्रीट कर रहा है। बाइंड हो जाएगा, बाइंड होके एक केमिकल सिक्रीट करेगा। नेम ऑफ दैट केमिकल इज कॉल्ड परफोरिन। देन परफोरिन फॉर्म्स ए होल इन इन्फेक्टेड सेल। परफोरिन की जवाबदारी है कि वो इन्फेक्टेड सेल्स में होल क्रिएट करेगा। इट ऑल्सो रिलीजेस सब्सटेंस दैट किल द सेल, हेंस द नेम एज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और बाद में उस सेल को क्या करेगा? वो डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा, इसलिए उसका नाम पड़ा साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोप्लाज्म में जाकर एक पॉइजनस केमिकल सिक्रीट करना, परफोरिन सिक्रीट करके उसको किल कर देना। नाउ कम टू नेक्स्ट वन कॉल्ड सप्रेसर टी सेल्स। दिस सेल सप्रेसेस द एंटायर इम्यून सिस्टम। ये पूरी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम डेवलप हुई है उसको क्या करेगा? सप्रेस करेगा, कूल डाउन करेगा अगेंस्ट अटैक ऑन ओन बॉडी सेल्स, जिससे दूसरे बॉडी सेल्स के ऊपर में कोई अटैक ना आए, उसके लिए सप्रेसर टी सेल विल वर्क। ठीक है, जैसे शहर में कोई बदमाशी होती है तो पूरा शहर जो है बंद हो जाता है। आजू बाजू के शॉप्स, मार्केट, घर, रोड के ऊपर आने जाने वाले सब गायब हो जाते हैं। एंड यू कॉल इट एज कर्फ्यू लग गया। तो इसी प्रकार बॉडी में कभी अटैक हो जाए, कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म्स का, बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, तो सप्रेसर टी सेल क्या करता है? बाकी के जो सेल्स है, ओन सेल्स जो है उनको सप्रेस कर देगा, सो दैट द एक्टिविटी गेट स्टॉप। मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स आर प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड सेल्स that retain the sensitization memory for long time in future। इसका मतलब दोबारा अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, एंटीजन अगर अटैक करता है तो मेमोरी टी सेल्स हेल्प करेगा, आपको याद दिलाएगा, जिससे वो बैक्टीरिया को कैसे किल किया गया था, उस बैक्टीरिया को कैसे हार्म पहुंचाया गया था। ऑन द सेम वे सेम टेक्निक इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय दैट पैथोजन। उसी सेम टेक्निक से उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। इसलिए नेवर फॉरगेट और फॉरगिव एनिमी। ये कैसा मेमोरी टी सेल्स? ऐसा सेल्स है जो कभी भूलता नहीं है। ठीक है, कि एनिमी को कैसे बताया, कैसे मारा गया था। बिकॉज ऑफ देयर गुड मेमोरी दे स्विंग इनटू एक्शन प्रॉम्प्टली व्हेन इवन द सेम पैथोजन एंटर्स द बॉडी। दोबारा अगर वो पैथोजन फिर से अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसको उसी तरीके से भगाया जाएगा, मारा जाएगा, सो दैट अगेन इट कांट एंटर, जैसे फिर से वो दोबारा बॉडी में एंटर न कर पाए। इस प्रकार मेमोरी टी सेल ऑल्सो वर्क। Now come to second one called as antigen presenting cells. What do you mean by this term called antigen presenting cells? As per name indicate, antigen presenting cells also called as antigen processing cells. इसको और क्या नाम दिया गया है? antigen processing cells. It is also called as antigen processing cells. Also described as antigen processing cells. These are the specialized cells which includes macrophage. Specialized cells है ये जो बॉडी में क्या डेवलप कर रहे हैं? मैक्रोफेज को डेवलप किए हैं। मोनोसाइट्स को डेवलप किया गया है। स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एज ब्लड मैक्रोफेज, हिस्टोसाइट्स एज टिश्यू मैक्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स एंड डेंड्राइट सेल्स, दे ऑल एंगल्फ। ये सब के सब क्या करते हैं? एंगल्फ कर लेते हैं इन्वेडिंग पैथोजन एंड प्रोसेस एंटीजीन।
और उस एंटीजन का प्रोसेसिंग चालू कर देते हैं, जिससे वो एंटीजन दोबारा आपकी बॉडी में एंटर ही ना कर पाए। देन प्रोसेस एंटीजन इज प्रेजेंटेड ऑन देयर सरफेस। अब उस प्रोसेस एंटीजन जो है बराबर आपकी बॉडी सरफेस पे आपको जज करेंगे। इस प्रकार वो ऑर्गेनिजम्स जो है एंगल्फ होने के कारण उसको ईट कर दिया गया, उसको किल कर दिया गया और बॉडी से उसकी सफाई कर दी गई। ठीक है, दिस एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एंगल्फ इन्वेडिंग पैथोजन एंड प्रोसेस द एंटीजन, उसकी पूरी प्रोसेसिंग कर देंगे। देन द प्रोसेस एंटीजन आर प्रेजेंटेड ऑन देयर ओन सरफेस। These cells are able to deliver a stimulatory signal that is necessary for activation of helper T cells, और वो एक ऐसा स्टिमुलस बनाता है जिससे हेल्पर टी सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाए, जिसके थ्रू फिर से रिकवरी हो जाए एंड कंप्लीट बॉडी गेट इन्फेक्शन फ्री, और जिससे पूरा बॉडी जो है फिर से क्या हो जाए, इन्फेक्शन फ्री हो जाए। These are details regarding cells of immune system, which you call it as lymphocytes and antigen presenting cells in detail. Now our next topic is structure of antibody. Our next topic is describe the structure of antibody. Our next topic is describe structure of antibody, which we want to see in next lecture. Describe structure of antibody.